پاکستان گلوبل وارمنگ کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہیں۔ پاکستان سنجیدگی سے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلین ٹری منصوبے کا آغاز خیبر پختونخوا سے کیا، نیشنل پارکس بنا رہے ہیں۔ 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت 1 ارب پودے لگانے کا ہدف مکمل۔ وزیر اعظم نے پودا لگا کر 1 ارب پودے لگانے کا ہدف مکمل کیا۔ 19 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن آج سے شروع کر دی گئی۔ شہری 1166 پر میسج کے ذریعے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ راولپنڈی کی سینٹرل جیل اڈیالہ میں قیدیوں، حوالاتیوں اور سٹاف کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں 2,94,364 افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی۔ ویکسین لگوانے کے لیے رجسٹریشن کیسے کروانی ہے، ویب سائٹ پر اپنا ریکارڈ کیسے ڈالنا ہے اور تصدیق کے بعد کس مرکز میں جا کر ویکسین لگوانی ہے، تمام تفصیل دکھائیں گے اسی بلیٹن میں۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، مہلک وبا ایک دن میں مزید 75 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے میں 2726 نئے کیسز رپورٹ، فعال کیسز کی تعداد 59,018 ہو گئی۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 4.34% ہو گئی۔ لاہور میں SOPs کی خلاف ورزی پر 39 مقدمات درج کیے گئے۔ ملتان میں 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج، 8 کاروباری مراکز سیل۔ ماسک نہ پہننے پر 28 شہریوں کو جرمانہ، 7 بسوں کو تحویل میں لے لیا گیا۔ محکمہ ایجوکیشن پنجاب کا گرمیوں کی چھٹیاں کم کر کے 1 ماہ کرنے کا فیصلہ۔ 1 جولائی سے 31 جولائی تک چھٹیاں دی جائیں گی۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کا شیڈول بھی فائنل۔ 26 جون سے 12ویں جماعت کے امتحانات شروع ہوں گے۔ انٹر امتحانات کے 15 روز بعد میٹرک کے پیپرز لیے جائیں گے۔ 9ویں اور 11ویں کے امتحانات ستمبر میں ہوں گے۔ ڈیٹ شیٹ اسی ہفتے جاری کیے جانے کا امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، مراد علی شاہ کی شکارپور واقعے پر بریفنگ، کہا ہم جلد کچے کے ایریا سے ڈاکوؤں کا صفایا کر دیں گے، ہم مل کر کام کریں گے، کچھ حساس ساز و سامان کے حصول میں وزارت داخلہ مدد کرے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی سندھ حکومت کو مدد کی پیشکش، کہا امن و امان سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے وزارت داخلہ مہیا کرے گی۔ سندھ حکومت جب چاہے رینجرز کی خدمات لے سکتی ہے۔ ڈاکوؤں کے خلاف دہشت گردی کے کیسز درج کرائے جائیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید آج گورنر سندھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پنجاب رینجرز کے ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد۔ ISPR کے مطابق پاسنگ آؤٹ پریڈ پاکستان رینجرز اکیڈمی منڈی بہاؤالدین میں ہوئی۔ DG پنجاب رینجرز میجر جنرل عامر مجید مغل پریڈ کے مہمان خصوصی تھے۔ DG پنجاب رینجرز نے اعلیٰ کارکردگی پر جوانوں کو انعامات اور اسناد سے بھی نوازا۔ میجر جنرل عامر مجید مغل نے کہا پنجاب رینجرز کے جوان مشرقی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ گلگت سے کشمیر تک اندرونی سلامتی کی ذمہ داری بھی رینجرز کے جوانوں پر ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت، وفاقی سیکرٹری داخلہ، ڈائریکٹر ہیومن رائٹس، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دیگر پیش۔ عدم پیشی پر وفاقی سیکرٹری داخلہ نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ شو کاز نوٹس کا جواب بھی جمع کرا دیا۔ جسٹس کے آقا نے کہا کہ آپ انتہائی اہم پوزیشن پر تعینات ہیں۔ عدالت نے کئی حکم نامے جاری کیے، جواب تک جمع نہیں کرایا گیا۔ مجبوراً عدالت کا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنا پڑا۔ جبری گمشدگی کا مسئلہ انتہائی اہم ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن سکینڈل، DG پنجاب آڈٹ کی ٹیم کو رنگ روڈ ریکارڈ حصول میں مشکلات کا سامنا۔ آڈٹ ٹیم نے کمشنر راولپنڈی کو ریکارڈ حصول کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے کی درخواست کر دی۔ درخواست میں کہا کہ ریکارڈ کا حصول آسان بنانے کے لیے RDA میں فوکل پرسن تعینات کیا جائے۔ آڈٹ ٹیم نے منصوبے کے واؤچرز، چیک بکس، فائنینشل سٹیٹمنٹس طلب کر رکھی ہیں۔ ٹیم نے 20 دنوں میں مجوزہ منصوبے کا اسپیشل آڈٹ کرنا ہے۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान कर्जों पर मुल्क की मईशत चलाकर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए गड़ा खोद रहे हैं। अगर इमरान खान इसी रफ्तार से कर्ज लेते रहे तो कौम को मुस्तकबिल में सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। सख्त शराइत पर कर्ज लेकर मईशत चलाने का तजुर्बा आइंदा हुकूमतों के लिए भी मसाइल पैदा करेगा। अपनी नाअहली से वाकिफ होने के बावजूद इमरान खान ने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान को मुआशी तबाही से दो चार कर दिया। माजरत हमें नहीं दूसरों को करनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ही रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीडीएम को दीगर मामलात के साथ मिक्स ना किया जाए। हम गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ हैं। हमने किसी को वापस आने के लिए दरख्वास्त नहीं दी। पीडीएम के कुछ लोग मुश्तरका इस्तीफ़ा देने के लिए बाज़िद थे। आज वही लोग बजट पर हिकमत अमली बनाने की दावत दे रहे हैं। एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुल्क में ज़्यादा तवानाइयाँ एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगाई जा रही हैं। बरतानिया ने बैरून मुल्क मुकीम अपने शहरियों को ताहयात वोट का हक दे दिया। बैरून मुल्क मुकीम शहरियों को वोट के हक के लिए 15 साला मुद्दत ख़त्म कर दी गई। मलिका की तकरीर में ऐलान करदा नए इक़दामात से ओवरसीज़ बरतानवी शहरियों को जमहूरियत में शिरकत का मौका मिलेगा। 15 साल से बैरून मुल्क मुकीम बरतानवी शहरी अब अपने मुल्क में इंतखाबात के दौरान वोट डाल सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम बरतानवी शहरी 3 साल में एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन की तजदीद कराएंगे। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऊपर होगा। इस मौके पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लोग क़िबले की समत मुतय्यन कर सकते हैं। ये इस साल का पहला वाक़या होगा। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ अली डार। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। आगाज़ में आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है। मुराद अली शाह की शिकारपुर वाक़े पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव ने। जी वकील राव, क्या तफसीलात है इस मुलाकात से मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आपसे कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से एक तफसीली मुलाकात की है। इस मुलाकात में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और डीजी समेत सिंध हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर मुशीर क़ानून और आईजी सिंध पुलिस जो है वो शरीक थे। सिंध में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और खुसूसन जो कुछ रोज़ पहले सिंध के ज़िला शिकारपुर में जो डाकुओं की जानिब से पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया था मुकाबले के दौरान, वो और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ जो सिंध हुकूमत की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है उसके मुहर्रिकात के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला को तफसीली आगाह किया और वफाकी हुकूमत से जो ताउन दरकार है उसके हवाले से भी वज़ीर आला सिंध ने दरख्वास्त की है वफाकी वज़ीर दाखिला को। और वफाकी वज़ीर दाखिला ने सिंध हुकूमत की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला सिंध ने हसास नौयत की जो असला है उसकी के हवाले से वफाकी हुकूमत से ताउन मांगा, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। और वफाकी वज़ीर दाखिला का इस हवाले से कहना था कि कच्चे में जो ऑपरेशन सिंध हुकूमत शुरू करने जा रही है डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन वो ऑपरेशन होना चाहिए और जो डाकू हैं उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाने चाहिए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि ये जो शिकारपुर, जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट जो सिंध के 3 अजला हैं, 3-4 अजला ये बॉर्डर एरियाज़ हैं। बलूचिस्तान और पंजाब से इनकी सरहदें मिलती हैं। बैरून मुल्क से जो है ये भी बताया गया कि इंतहाई ख़तरनाक असला इन डाकुओं के पास है। बॉर्डर एरियाज़ पर भी जो है सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ताहम दोनों रहनुमाओं की जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगाह करें आपको अहम खबर के हवाले से। डीजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां। पुलिस, रेंजर्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज मुश्तरक ऑपरेशन करेंगे। हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां, जदीद असलहा और कमांडो भी तलब कर लिए गए हैं। डीजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां। पुलिस, रेंजर्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां, जदीद असलहा और कमांडो भी तलब कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। डीजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन की
तैयारियां पुलिस, रेंजर्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां, जदीद असलहा और कमांडो भी तलब कर लिए गए हैं। आम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, इसी पर तफसीलात जानते हैं। मजान की हमारे नुमाइंदे आरिफ इस्माइल ने। आरिफ, आगाह कीजिएगा, ये ऑपरेशन का आगाज कब किया जाएगा? जी, ये डेरा गाजी खान में लादी गैंग 90 की दिहाई में एस्टेब्लिश हुआ था और इसने डेरा गाजी खान में सीमेंट फैक्ट्री समेत मुख्तलिफ जो बड़े इदारे हैं वहाँ से भत्ताखोरी का सिलसिला शुरू किया हुआ था। डेरा गाजी खान में जो लादी गैंग है, इन्होंने अगवा बराए तावान समेत मुख्तलिफ बड़ी वारदातें की हुई हैं और जो ऑपरेशन का फैसला किया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से कल, उसकी असल वजह ये बनी है कि इन्होंने 3 लोगों को अगवा करके उनके नाक, कान और हाथ काटने की खौफनाक वीडियो जो है वायरल की लादी गैंग के सरबराह ने खुदा बख्श ने, और उसके बाद और लोगों को भी तावान के लिए पैगाम भेजे। वज़ीर आज़म के मामला जब इल्म में आया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऑपरेशन के लिए रेंजर्स और आईजी पंजाब को हुक्म दिया है, जिस पर रेंजर्स ने यहाँ पर डेरा गाजी खान में इजलास तलब कर लिया और यहाँ पर बड़ा आला सतही इस वक्त इजलास में ऑपरेशन का फैसला किया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और बख्तरबंद गाड़ियों की भी तलब की गई है। जो डेरा गाजी खान ऑपरेशन इससे पहले भी किया गया था लादी गैंग के खिलाफ, लेकिन अब तक ये गैंग खत्म नहीं हो सका और गैंग दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। इसको मुकामी तारिक इस्माइल कुरैशी अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का हरिपुर का दौरा, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हरिपुर का दौरा किया और वहां पर पौधा भी लगाया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इक़दामात कर रहा है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज़ है। ये एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान वो चंद मुल्कों में से है जो बड़ी सीरियसली कोशिश कर रहा है अपने मुल्क में ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, वो दूर करने के लिए। हम वो चंद मुल्कों में से हैं जो कि पूरी तरह इसके लिए कोशिश इसलिए नहीं कर रहे दिखाने के लिए, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वाकई अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसलिए है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से वो 10 मुल्कों में से है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज से। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे इसलिए ज़्यादा पड़ेगा, हम इसलिए ज़्यादा मुतासर हैं क्योंकि हमारा पानी जो दरियाओं में आता है वो ग्लेशियर से आता है, और अगर इसी तरह मौसम तेज़ी से गर्म होता गया तो हमारे ग्लेशियर्स जिस रेट पे पिघल रहे हैं, अगर इसी रेट पे पिघलते रहे तो आगे जाके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चालान JIT की रिपोर्ट के केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा हुकूमत पंजाब की तरफ से जवाब दाखिल नहीं करवाया गया, आइंदा समाअत पर हिदायत लेकर बताएं। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन के FIR चलान JIT रिपोर्ट की केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जवाब दाखिल नहीं कराया गया। अहम समाअत के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि आइंदा समाअत पर हिदायत लेकर बताएं कि अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं फराहम की गई हैं। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत 15 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी है। 15 रोज़ के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन के FIR चलान JIT रिपोर्ट के केस की समाअत हुई है और हुकूमत पंजाब की तरफ से जवाब दाखिल नहीं कराया गया। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन के FIR चलान JIT की रिपोर्ट के केस की समाअत हुई। तफसीलात जानते हैं मजान के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। मोहम्मद हारून, क्या हुआ आज की समाअत में? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन की FIR चलान और JIT रिपोर्ट से मुतल्लिक केस की समाअत हुई थी। जस्टिस शाहिद करीम ने जवाद अहमद की समाअत की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो आज जवाब दाखिल नहीं करवाया गया, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि आइंदा समाअत में हदायत लेकर बताएं कि अभी तक रिपोर्ट क्यों फराहम नहीं की गई है और कब तक फराहम कर दी जाएगी। अदालत ने समाअत जो आइंदा 15 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी। ठीक है मोहम्मद हारून, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।